یسوع کی صلیب سے کچھ پہلے پارٹ 2۔ یہودی کیلنڈر کے مطابق پہلے مہینے کی 12 تاریخ کو صلیب پر جان دینے سے 2 دن پہلے سوموار کے دن انجیر کا درخت مرجھا گیا۔ بچوں، یسوع کی صلیب سے 2 دن پہلے صبح کے وقت وہ یروشلم کی طرف چل دیے۔ راستہ میں انجیر کے اس درخت کے پاس سے گزرے۔ وہاں کیا دیکھا؟ مرکز 11 باب 20 سے 21 آیت۔ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی، دیکھ، یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ مرکز 11 باب 22 آیت۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو۔ یسوع نے انجیر کے مرجھائے ہوئے درخت کی مثال سے شاگردوں کو خدا پر ایمان اور معافی کا درس دیا۔ یہودی یسوع کو پھانس نہ پائے۔ اس دن یسوع اور اس کے شاگرد یروشلم پہنچ گئے۔ جس وقت یسوع ہیکل میں داخل ہو رہا تھا، سردار کاہن، شریعت کے عالم اور بزرگ اس کے پاس چلے آئے کہ اس سے طرح طرح کے سوال کر کے اس کی حیثیت اور اختیار پر نکتہ چینی کریں۔ بد فطرت کرایہ دار کی تمثیل انہی لوگوں کو ظاہر کرتی ہے جنہوں نے مالک کے بیٹے کو مار ڈالا۔ مرکز 12 باب 12 سے 13 آیت۔ اس پر وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل انہی پر کہی۔ پس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر انہوں نے بعض فریسیوں اور ہیرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو پھنسائیں۔ بچوں، اس دن یہودیوں، فریسیوں، شریعت کے عالموں، کاہنوں اور یہاں تک کہ ہیرودیس کے وفاداروں نے بھی زور لگا لیا کہ کسی طرح یسوع کو اپنے جال میں پھانس لیں اور اس سے جان چھڑا لینے کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے۔ انہوں نے دل میں بسی بدی کے تحت کیسر کو دیے جانے والے ٹیکس کے متعلق یسوع کے سامنے سوال داغے، مگر یسوع کے حکمت بھرے الفاظ نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ متی 22 باب 46 آیت۔ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا۔ اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی۔ آج یسوع نے فریسیوں کے ان گناہوں کی نشاندہی کی جو وہ ہیکل میں کرتے تھے، کیونکہ وہ انجیر کے اس درخت کی مثال تھے جس کے پتے خوب ہرے اور چمکدار تھے، مگر اس میں کوئی پھل نہیں تھا۔ صلیب سے ایک دن پہلے مہینہ کی 13 تاریخ، ہیکل کے مسمار کیے جانے اور آخری دنوں کی پیشن گوئی۔ مرکز 13 باب 1 سے 2 آیت۔ جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، دیکھ، یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے؟ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ بچوں، یسوع اور اس کے شاگرد ہیکل سے نکل رہے تھے۔ ایک شاگرد نے
हैकल की तामीरी शानो शौकत की तारीफ की। मगर यसू ने जवाब में हैकल को गिरा दिए जाने की खबर सुना दी। शागिर्द हैरान और शशदर रह गए। घबरा कर पूछने लगे, ये बातें कब वकू में आएंगी? मरकस 13 बाब 3 से 7 आयत। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता के ये बातें कब होंगी? और जब ये सब बातें पूरी होने को हों, उस वक्त का क्या निशान है? यसू ने उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। वह तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना। इनका वाक़े होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खातिमा ना होगा। बच्चों, सलीब से एक दिन पहले शरीयत के आलम और फरीसी एक औरत को ज़ना के जुर्म में पकड़कर यसू की आजमाइश की खातिर उसके पास लाए। यसू ने खुद को दुनिया के लिए रोशनी कहा। अच्छा चरवाहा कहा। यसू ने बेवा औरत की तरफ से अदा किए गए 2 सिक्कों पर उसकी तारीफ की और जन्म के अंधे को शफा दी। फिर यसू ने हैकल की बर्बादी और दुनिया के अंजाम की अलामात के मुतल्लक नबूवत फरमाई। 10 कंवारियों की तमसील सिखाई ताकि खुद को दुनिया के अंजाम के लिए तैयार रखा जाए। यसू को मरवाने के मशवरे। यसू ने जब से तबलीगी मुहिम का आगाज किया था, उसी वक्त से यहूदी, फरीसी, शरीयत के उस्ताद और काहन सब अपनी अपनी जगह यसू से जान छुड़ा लेने की जदोजहद में पड़ गए, मगर उनका कोई दाव कारगर ना हुआ। और अब आसमानी बाप का तयशुदा वक्त आ पहुंचा था। लोग पिछले 1500 साल से फसा की जो कुर्बानियां अलामत के तौर पर चढ़ाते आए थे, उनकी जगह फसा का असल बर्रा पहुंच चुका था कि कुर्बान किया जाए। मरकस 14 बाब 1 आयत। 2 दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी, और सरदार काहन और फकीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें। मत्ती 26 बाब 3 से 5 आयत। उस वक्त सरदार काहन और कौम के बुजुर्ग काइफा नाम सरदार काहन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यसू को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। मरकस 14 बाब 10 आयत। फिर यहूदा अस्करियोती जो उन 12 में से था, सरदार काहनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाला कर दे। मत्ती 26 बाब 15 आयत। अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए। बच्चों, फरीसी, काहन और शरीयत के आलिम सब यही चाहते थे कि किसी तरह यसू से छुटकारा पा लें।
मगर उनमें यसू का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। सब लोग यसू की तालीमात सुनकर खुश और हैरत ज़दा से थे। अहम बात ये थी कि 2 दिनों के बाद ईद फसह थी और यहूदी चारों तरफ से यरूशलेम में इकट्ठे हो रहे थे। सब मजहबी रहनुमा इस बात से खौफजदा भी थे कि यसू को गिरफ्तार करवाने से कहीं लोग उनके खिलाफ भड़क ना उठें। और जबकि यसू के खिलाफ मंसूबाबंदी में वो सख्त मगजमारी कर रहे थे। ऐसे में यहूदा ने उनकी ख्वाहिश पूरी करने और यसू को गिरफ्तार करवाने की हामी भर ली। मरकस 14 बाब 11 आयत। और वो मौका ढूंढने लगा कि किसी तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। बच्चों, अब ये ईद फसह से 1 दिन पहले का वक्त था। यहूदा चांदी के 30 सिक्कों के बदले यसू को पकड़वाने में सरगर्म हो गया। पिछले सबक में हमने बैत अनिया की मरियम के हालात पर बात की थी। उसने जटामासी का नहायत बेशकीमत इतर यीशु के सर पर बहाया था। इस इत्र की मालियत थी चांदी के 30 सिक्के। यानी एक फर्द ने यसू को चांदी के 30 सिक्कों के बदले मार डाले जाने को पकड़वा दिया, जबकि एक दूसरे फर्द ने चांदी के 30 सिक्के उस पर निछावर कर दिए और यूं उसकी ताजीम की गई। बच्चों, ये यसू की सलीब से 1 दिन पहले का वक्त था। यहूदा काहिनों के साथ यसू को पकड़वाने के तरीकाकार पर मशवरे कर रहा था। सलीब से 1 दिन पहले मंगल का दिन यहूदी कैलेंडर के पहले महीने की 13वीं तारीख, पहले महीने की 13 तारीख फसह की तैयारी के लिए होती है। मरकस 14 बाब 12 से 16 आयत। ईद फतीर के पहले दिन, यानी जिस रोज फसह को ज़िबा किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? फसह के खाने से पहले उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार दिखाएगा, वही हमारे लिए तैयारी करना। बस शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह को तैयार किया। मत्ती 26 बाब 19 आयत। और जैसा यसू ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। बच्चों, यसू जानता था रास्ता में कौन उन्हें मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे यसू जानता था कौन सी मछली के मुंह में पतरस के लिए सिक्का होगा कि वो टैक्स अदा करे, वैसे ही जैसे यसू जानता था कि उसकी सवारी के लिए एक जवान गधा कहाँ से मिलेगा। यसू हर चीज के महल्ले वकू से, हर चीज के इस्तेमाल और आने वाले दिनों की हर तफसील से खूब आगाह था, क्योंकि यहूदी अपने दिन का शुमार गुरूबे आफताब के वक्त से करते हैं। मंगल के रोज दिन के वक्त
13 तारीख थी। मगर सूरज डूब जाने के बाद 14 तारीख शुरू हो गई। यूं फसा के दिन का आगाज हो गया। शागिर्दों ने फसा की तैयारी की, मगर ये फसा का असल खाना नहीं था। ये रात फसा की तैयारी के लिए थी। बच्चों, ये फसा का आखिरी खाना था जो यसू और उसके शागिर्दों ने इकट्ठे मिलकर खाया। यसू के लिए ये आखिरी मौका था कि वो शागिर्दों को कुछ सिखाता। चुनांचे यसू की नजर में ये वक्त नहायत ही अहम और कीमती था। मंगल की रात यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पहले महीना की 14 तारीख। मसीह के बदन और खून में अहद। लोका 22 बाब 15 आयत। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। मत्ती 26 बाब 26 से 29 आयत। जब वो खा रहे थे तो यसू ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। बच्चों, रोटी यहूदियों की खुराक का एक अहम और बुनियादी जुज्व है। जब यसू फसा का खाना खा रहा था, उसने रोटी ली, तोड़ी और साथ बैठे लोगों में बांट दी। उसने ये अमल इसलिए किया ताकि शागिर्द खूब याद रखें कि जिस तरह ये रोटी तोड़ी गई, उसी तरह यसू ने अपना बदन तोड़ फोड़ के लिए पेश कर दिया कि गुनाह की कुर्बानी हो जाए। और फिर यसू ने अपना प्याला भी शागिर्दों को पेश कर दिया, ताकि जब कभी वो मैं पिए, उन्हें यसू का वो खून याद आ जाए जो उसकी मौत के वक्त उन सब के लिए सलीब पर बहाया गया। वो लोग जो यसू के खून पर ईमान लाते और अपने लिए इसमें मौजूद नजात तलब करते हैं, सिर्फ वही यसू के साथ अबदी सुकून और अबदी हयात का लुत्फ ले पाएंगे। यसू ने फरमाया, उसके बदन और खून में शराकत का ये अहद कायम रखा जाए, यहाँ तक कि हमारी उससे दोबारा मुलाकात हो जाए। यसू की बख्शी नजात का असल रंग रूप नए आसमान और नई जमीन के क़याम के मौका पर उभर कर सामने आएगा। और उस दिन के बाद लोग हमेशा हमेशा खुदा के साथ का लुत्फ उठाते रहेंगे। अहद का जो प्याला हम अब पीते हैं, वो तो आने वाले वक्त के इंतजार का एक इजहार है, वफा की एक अलामत। यसू ने फरमाया, नजात की भरपूर अंदाज में तकमील होगी। उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। ये बात फसा की अलामत है, बेखमीरी रोटी की ईद, पहले फलों की ईद और इन जैसी तमाम रस्में इस बात का इजहार है कि किस तरह यसू इंसान के गुनाह के बदले कुर्बान हो जाएगा। और जब एक बार यसू
यानी फसा का असल बर्रा सलीब पर जान दे चुका। हमें कफारा के इजहार के लिए मजीद अलामती कुर्बानियों की अदायगी की जरूरत नहीं रही। सारी अलामती कुर्बानियां जो यसू की कुर्बानी के इंतजार में की जाती रहीं, यसू ने इंसानी रूप में दुनिया में आकर अपने खून से सलीब पर मुकम्मल कर दी। तब वो जी उठा और आसमान पर चला गया। यसू ने फरमाया, ये मेरा वो अहद का खून है। चुनाचे हम उसके गोश्त और खून की शराकत के इस तसलसल पर कारबंद हैं। एक दिन आएगा जब हम यसू के साथ आसमानी बाप की बादशाही में इकट्ठे नया पिएंगे। शागिर्दों के बिखर जाने की पेशन गोई। सलीब से पहले की शाम यसू ने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया। यसू ने पाक दस्तरख्वान का अहद कायम किया ताकि लोग नस्ल दर नस्ल इसमें शराकत करें। उसके बाद यसू शागिर्दों से यूं मुखातिब हुआ। लूका 22 बाब 37 आयत। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है, इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। मत्ती 26 बाब 31 से 34 आयत। उस वक़्त यसू ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यसू ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। बच्चों, फसा के इस मौका पर यसू ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। उन्हें समझाया कि जो कोई बड़ा बनना चाहे, लाजिम है कि दूसरों की खिदमत करे। यसू ने शागिर्दों को ये हुक्म भी दिया कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। यसू ने पाक दस्तरख्वान की शराकत भी कायम की ताकि शागिर्दों को याद रहे कि यसू ने आसमानी बाप के साथ हमारी खातिर ये नया अहद बांधा। यसू ने ये पेशनगोई भी की कि आज की शाम शागिर्द बिखर जाएंगे और पतरस 3 बार उसका इनकार करेगा। खाने से फारग हो जाने पर यसू ने बाप से दुआ फरमाई कि वो शागिर्दों को मुत्तहिद रखे और शैतान के फंदों से बचाए। बच्चों, खाने की आखिरी महफिल के बाद यसू ने सलीब की जानिब अपनी मुसीबतों की राह पर कदम रख दिए। इब्ने आदम की हैसियत में यसू की तरफ से शागिर्दों के साथ ये आखिरी दिन था। खाने से फरागत पाई और फिर वो एक जाने पहचाने बाग की जानिब चल दिए। गतसमनी मरकज 14 बाब 32 से 34 आयत। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था। और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पितरस और याकूब
और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा। और उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक के मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। मत्ती 26 बाब 39 आयत। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। लूका 22 बाब 43 से 44 आयत। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। बच्चों, जिस घड़ी यसू सलीब की तकलीफों और जुल्मो जबर की गिरफ्त में आने को था, उसके सारे महसूसात बिल्कुल हमारे जैसे थे। जख्मों की तकलीफ, भूख प्यास, थकावट, खौफ और दहशत, सब जज्बे हमारे जैसे थे, ठीक? मगर यीशु तो खुदा का बेटा है, तब फिर वो क्यों खौफजदा था? जी बिल्कुल दुरुस्त, यसू खुदा का बेटा है, मगर वो इब्ने आदम की हैसियत में पैदा हुआ, इंसानी गोश्त पोस्त, इंसानी हदूद और इंसानी जज्बात और एहसासात में मुक़य्यद। वो सारी रात इंसानी दुख और इंसानी फिक्रों में खोया बाप के हजूर दुआएं करता रहा, यहाँ तक के उसे मजबूती देने फरिश्ते उसके पास आन पहुँचे। इन बातों का मतलब यही था, यसू इंसानी रूप लेकर आया। इंसानी कमजोरियां उसमें भी थीं। दूसरे इंसानों की तरह वो भी खुदा की मदद का मोहताज था। चुनाचे यसू हमारे खौफ और दहशतों से खूब वाकिफ है, क्योंकि वो इन सारे मरहलों से खुद भी गुजर चुका है। रोजे आकर यसू खुदा बनकर नहीं बल्कि इब्ने आदम की हैसियत में हमारा इंसाफ करेगा। वरना कहीं हम खुदा को बेइंसाफ ना कह दें, क्योंकि खुदा ना तो किसी गुनाह का मुर्तकब हो सकता है और ना ही उसे बहकाया जा सकता है। मगर यसू ने हम इंसानों जैसी कमजोरियों भरी जिंदगी बसर की। उसे जदोकोब किया गया, उसकी तहकीर की गई और रद्द कर दिया गया। शरीयत के उस्तादों और फरीसियों ने उसे खूब जलील किया, मगर यसू ने अपनी दुनियावी और इंसानी जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। यसू जब तक इंसानी रूप में दुनिया में रहा, वो इंसानों के अंदाज में खुदा पर इन्हिसार करना सीखता रहा। उसने दुआ करना सीखी, खुदा की कुर्बत की जुस्तजू रखी, खुदा का खौफ माना और इब्ने आदम की हैसियत में खुदा के नाम के जलाल की खातिर सरगर्मे अमल रहा। यसू जानता था इंसान जब तक यसू के अंदाज में खुदा के हजूर मदद के लिए इल्तिजाएं करता रहे, अपनी तमाम दुनियावी मुश्किलात पर काबू पा सकता है और एक फतहमंद जिंदगी गुजार सकता है, जिस तरह यसू ने एक फतहमंद जिंदगी गुजारी। बच्चों,
قدیم زمانہ کے رومی قوانین کے روبرو مقدمہ کا سامنا کرتے وقت یسوع کو خوب احساس تھا کہ اس پر ظلم و جبر کیا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے اور خوب نوچا کھسوٹا جائے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کاہن کس طرح لوگوں کو بڑکا کر انہیں اس کی صلیب کے لیے استعمال کریں گے۔ چنانچہ جب یسوع نے ان سب تکلیف دہ باتوں کے متعلق سوچا تو نہایت پریشان ہو گیا۔ اس کے دل میں ان مصیبتوں سے بچ نکلنے کی خواہش مچلنے لگی، مگر یسوع خدا کے حضور مکمل طور پر تابع دار رہا، یہاں تک کہ سخت مصیبت اور تکلیف دہ مراحل سے گزرتے وقت بھی وفادار رہا، اور آسمانی باپ کی رضا کی تکمیل پر کاربند رہا۔ بچوں، جب یسوع گتسمنی کے مقام پر دعا مکمل کر چکا تو نجات کی تکمیل کی راہوں پہ قدم بڑھا دیے۔ یسوع کو گرفتار کیا گیا، یوحنا 18 باب 2 سے 9 آیت۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا، اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے کہہ تو چکا کہ میں ہی ہوں، بس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا۔ یوحنا 18 باب 10 سے 12 آیت۔ پس شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا داہنا کان اڑا دیا۔ اس نوکر کا نام ملخص تھا۔ یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار کو میان میں رکھ، جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں؟ تب سپاہیوں اور ان کے صوبہ دار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا۔ بچوں، یسوع نہایت زوردار اور با اختیار شخصیت کا مالک ہے۔ جب اس نے کہا، میں ہی ہوں، جو اسے گرفتار کرنے آئے تھے خدا کے وجود کی دہشت سے سہم کر پیچھے ہٹے اور زمین بوس ہو گئے۔ اگرچہ یسوع کا نام ہی طاقت اور اختیار کا منبع ہے، پھر بھی اس نے خود کو ان کے حوالہ کر دیا۔ اس نے کہا، جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں؟ چنانچہ یسوع نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور وہ اسے پکڑ کر لے گئے۔ یسایہ نبی نے پہلے ہی یسوع کے متعلق پیشن گوئی کر دی تھی۔ یسایہ 53 باب 7 آیت۔
वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं, हाँ, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है उसी तरह वो खामोश रहा। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, यीशु ने सलीब पाने से एक दिन पहले अपने शागिर्दों को बहुत सी नसीहतें की। उसका अंदाज बिल्कुल उस माँ की तरह था जो लंबे सफर पर जाते वक्त बच्चों को तन्हा छोड़ जाने में हिचकिचाहट महसूस करती हो। प्यारे बाप, अब मैं समझा, यीशु ने भी इंसानी बदन में नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफें सही। मैं समझता था यीशु तो खुदा का बेटा है, वो यकीनन सुपरमैन की तरह हर काम बआसानी कर लेगा। मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कि यीशु ने अपनी अजीम हीरो जैसी ताकतों और अपने वजूद के सारे इख्तियारात को अपनी जात से अलग रख दिया था। वो खुशी खुशी उन सारी तकलीफों से गुजरने पर तैयार हो गया जो उसके इंसानी बदन की बर्दाश्त से बाहर थी। वो बखुशी एक कमजोर इंसान बन गया और पूरी लगन से अपना आप आसमानी बाप के हाथों में सौंप दिया कि बाप अपने अंदाज में उसके वसीला से इंसानी नजात की तकमील कर ले। अहम बात ये कि यीशु खुद पर टूटने वाली हर अज़ियत से बाखबर था। वो जानता था यहूदी उसे रद्द कर देंगे, रूमी सिपाही उसे कोड़े लगाएंगे और हर तरह से ज़दोकोब करेंगे। उसे खूब मालूम था सरदार काहन और शरीयत के आलम उस पर मुकदमा कायम करेंगे और उसे कलवरी की जानिब हाँकते हुए ले जाएंगे। अगरचे यीशु का दिल पारा पारा हो चुका था, फिर भी उसने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्यारे बाप, यीशु ने अपने हर अमल से तेरे साथ अपनी मोहब्बत साबित कर दी। मेहरबानी से मेरी मदद फरमा, मुझे भी यीशु जैसी कुव्वत, बर्दाश्त और दिल की लगन दे। वो तेरे हजूर मदद के लिए गिड़गिड़ाया, मुझे भी हिम्मत दे के तेरी ताबेदारी करूं और अपनी ख्वाहिशों पर तेरी रजा को तरजीह देता रहूं। प्यारे आसमानी बाप, मैं जानता हूँ मेरी पसंद कुछ और है, तेरी पसंद कुछ और। मेहरबानी से मेरी मदद फरमा, यीशु जैसा बन जाऊं और ये कहने में आर ना समझूं, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्यारे आसमानी बाप, यीशु तो तेरा बेटा है, फिर भी रहम और फजल पाने के लिए उसने तुझे
आसमानी बाबू, यहूदा चांदी के 30 सिक्कों के बदले यीशु से बेवफाई कर बैठा, मगर मरियम ने चांदी के 30 सिक्कों के बदले उम्दा इत्र खरीदा ताकि यीशु की ताजीम में पेश कर दे। यहूदा ने लोगों के सामने यीशु को बेइज्जत किया, मगर मरियम ने सबके सामने यीशु को अपनी अकीदत पेश कर दी। प्यारे आसमानी बाबू, मेहरबानी से मेरी मदद फरमा, हर दम यीशु और तेरे हजूर ताजीम और ताबेदारी में पेश पेश रहूं। यीशु के नाम में मेरी दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत।